نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میں دعوت دوں گا صدیق کیفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. دعوت دوں گا میاں عبد الغفور بٹو صاحب چیئرمین رائل نیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظفر گڑھ کے قائدین، حمایدین اور عظیم باسیوں، مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ میں قومی یکجہتی کے پروگرام میں آپ کے بیچ میں ہوں. حضرات، ایک اور بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اس دور دراز چھوٹے سے شہر میں، عظیم شہر میں، ہم اپنا کام بر وقت سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. تیسری بات میری ایک گزارش ہے کہ میں منتظم انتظامیہ کو گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی ٹائم کا تعین کر دیں اور دوسرے قائدین کے لیے بھی ٹائم کا تعین کر دیں تاکہ ہم بر وقت اپنی بات کو ختم کر سکیں. اور یہ ڈسپلن کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا نارمل پروگرام کاٹ کر، ہم معمول کا پروگرام کاٹ کر یکجہتی کے لیے ڈیلی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دے رہے ہیں. اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شاید کچھ مطلب معاشی کمزوری کا ضرور باعث ہے، لیکن اس میں اللہ میں اتنی برکت ڈالے گا کہ شاید ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم ایک قومی مسئلہ کے لیے آگے لے جا رہے ہیں. اب میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. حضرات، آپ میں سے سب میری عمر سے کم لوگ ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا. میں نے بھی تاریخ میں پڑھا، آپ بھی تاریخ پڑھتے ہیں، اور آج کل پڑھنے کی عادت بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. تب بتاؤ، اگر اس احساس کو ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس احساس کو اپنی آنے والی نسلوں کو بتا نہیں سکیں گے، تو پھر کیسے ہوگا کہ پاکستان کے مقصد کے لیے ہم آگے بڑھیں. حضرات، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہمارے لوگ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے. ہمارے لوگ میں کوئی تاجر کے نام کا آدمی نہیں تھا، کوئی صنعت کے نام کا آدمی نہیں تھا، کوئی جرنیل کے نام کا آدمی نہیں تھا، کوئی سیاست کے نام کا برائے نام آدمی تھا. اور
مذہبی حالت یہ تھی کہ جس گائے کو ہم اپنی سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے قربان کرنا، اس گائے کی وہ پرستش کرتے تھے. اور ہماری ملازمین کی حالت یہ تھی کہ مجھے ایک انڈین نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد 10 سال تک پاکستان وہاں کے مسلمان کی پوزیشن یہ تھی کہ مسلمان جس کے گھر پہ اندرا ہر ہفتے جا کر کھانا کھایا کرتی تھی، اس کا بیٹا صرف ہیڈ کلر کا تھا. اس گھر کا سپوت، اس گھر کا فرزند اعظم صرف ہیڈ کلر کا تھا. اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے 10 سال پہلے آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. اور میں اس ریفرنس سے بھی بات کروں کہ ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک عظیم رہنما آپ کو اس رخ پر لانے کے لیے کہ آپ اپنی ملازمتوں میں، آپ اپنے کاروبار میں، آپ اپنی اگلی بڑھوتری کی طرف بڑھنے کے لیے ناچنا پڑا تھا، جس کا نام سر سید کہا گیا ہے. آپ اپنی بدحالی اور بدترین حالات کا اندازہ لگا لیجیے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، حضرات، کوئی آدمی اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرات، کوئی اپنی آباء و اجداد کی قبریں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کے کچھ بزرگ، آپ کے جن لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر، اپنی گھر بار چھوڑ کر، بستی دنیا چھوڑ کر، بے آباد ہو کر اس ملک میں آئے، تو اس ملک میں اسے کچھ خواہشیں تھی، کچھ تمنا تھی، کچھ توقعات تھی. اگر خواہشیں، تمنا، توقعات نہ ہو اور کسی نے انہیں اٹھایا نہیں تھا، کسی نے انہیں نکالا نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، بلند آواز سے اپنے بچوں کو سمیٹتے ہوئے اور ڈھگوں والے سواری پر بٹھاتے ہوئے سینکڑوں اور ہزاروں میل سفر کر کے یہاں آئے. حضرات، یہی بات نہیں ہوئی. راستے میں ظلم کا بہت بڑا سمندر تھا، قتل و غارت کی بہت بڑا دریا تھا. ان کو خطرہ تھا راستے میں جاتے ہوئے ہماری عزتیں چھینی جائیں گی. انہیں خطرہ تھا ہم پتہ نہیں اپنے عرض زمین پر، ہم اس پاک سرزمین پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. انہیں پتہ تھا کہ ہمارے خلاف صف آرا ہوئی مخالف قوتیں، دشمن نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان پہنچے، پاکستان بنے، لیکن انہوں نے اس کی ناپرواہ کرتے ہوئے سرحدوں کو پار کرتے یہاں آئے. اور یہاں کے لوگوں کو داد دینی چاہیے، یہاں کے لوگوں کو بغیر تعریف کیے نہیں رہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اسے ویلکم کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی مدینہ میں آئے تھے اور مہاجروں نے ویلکم کیا تھا. حضرات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ یہ مملکت اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی، یہ مملکت اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر حاصل کی گئی تھی، اور یہ مملکت آپ کی خوشحالی کے لیے حاصل کی گئی تھی، یہ مملکت آپ کی ترقی کے لیے حاصل کی گئی تھی، یہ مملکت آپ کی محتاجی اور آپ کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی. اور اسی خوشی اور مسرت میں ان لوگوں نے سب کچھ قربان کیا، اسی خوشی اور مسرتوں نے آپ لوگوں نے اسے ویلکم کیا. لیکن حضرات، دشمن، مخالف بہت اویئر تھا. اس نے اس تاریخ کو 1857 سے کرچ کرنے کی کوشش کی، جسے آزادی کی تاریخ کہا جاتا تھا، لیکن اسے غدر کہا گیا. خلافت کی تاریخ کہا جاتا تھا، اسے کچھ اور نام دیا اور اسے ناکام بنایا. اور دشمن اس وقت سے اویئر تھا کہ مسلمان جدھر جا رہا ہے، مسلمان اس مملکت کی جو بنیاد رکھنا چاہتا ہے، مسلمان اس مملکت کو جہاں لے جانا چاہتا ہے، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کا جھنڈا قائم کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں وہ سکون اور وہ بھائی چارہ دینا چاہتا ہے جو دنیا ہمیشہ ترس رہی ہے اس سے. اور وہ دشمن کو یہ وارہ نہیں کھاتی تھی، دشمن کو یہ پسند نہیں تھی. دشمن نے تو پلاننگ پوری کی، بھرپور انداز میں پلاننگ کی، انتہا کے انداز میں پلاننگ کی. دوست بن کے چھرے کھونپے، دوست بن کے آپ لوگوں کو گندم تو دی، روٹی تو دی، بھیک تو دی، لیکن آپ کے ملک میں ایک سوئی بنانے کا کارخانہ قائم نہیں کیا. بہت کچھ کیا،
لیکن مخالف ہندوستان میں ان لوگوں نے صنعتوں کے انبار لگائے، اس کو ترقی دی تاکہ مجھے یاد ہے ایک بات بڑی اچھی طرح، میں دبئی میں تھا، مجھے ایک بہت ہندو سکالر، ہندو پولیٹیشین، ہندو جرنلسٹ سے واسطہ پڑا، تو میں نے اسے مذاقاً کہا کہ مہاراج جی ہندوستان کب ٹوٹ رہا ہے؟ مہاراج جی ہندوستان کب ٹوٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بٹو صاحب اس وقت ٹوٹے گا جب پاکستان خوشحال ہوگا، ہندوستان اس وقت ٹوٹے گا جب پاکستان خوشحال ہوگا، اگر پاکستان خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان ٹوٹے گا، ہندوستان نہیں ٹوٹے گا، اس کا یہ موقف تھا۔ حضرات، ہم نے خوشحالی کی طرف لے جانے کی بجائے ہم نے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا، لوگوں میں بحران پیدا کر دیا، اس ملک کی ہر چیز غیر محفوظ بنا دی گئی۔ تو حضرات، ضرورت اس بات کی تھی، 47 سے بات تھی کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں، ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کریں، ایک ایسا گراں قدر معاشرہ قائم کریں جس معاشرے کو فالو کر کے اس امن کی تلاش میں، اس بہتری کی تلاش میں، اس ترقی کی تلاش میں، حضرات اگر بات کو بڑھاتا گیا تو بات بہت بڑھے گی، لیکن میں اشاروں تک بات کرتا ہوں۔ میں جس کو امن کہتا ہوں، میں جس کو ترقی کہتا ہوں، اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو جائیے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف آوری سے پہلے عرب کا کیا صورتحال تھی؟ چھوٹی چھوٹی پر جنگ، چھوٹی چھوٹی پر لڑاؤ، عربی جو نفرت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے انہیں بدو کہا جاتا تھا، انہیں جنگلی کہا جاتا تھا، اور جب نبی کریم تشریف لائے اور انہوں نے اپنا راج نافذ کیا تو پھر کیسا معاشرہ قائم ہوا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ریمائنڈ کراتا ہوں کہ اس میں یہ خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ رفائی میں اگر گھنٹوں انتظار کرنا پڑا تو انہوں نے گھنٹوں انتظار کیا۔ اگر ایک ساتھی کو لے کر حکم ملا کہ منزل مقصود تمہاری مدینہ ہے تو وہ چل کر گئے، اگر وہاں مہاجرین کے پاس گئے چل کر تو لوگوں نے ویلکم کیا، کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا قومی یکجہتی کا مسئلہ، یہ تھا اتحاد کا مسئلہ، جس کی وجہ سے ترقی کے راستے آگے دیکھیے۔ وہ لوگ جو جنگلی کہلاتے تھے، وہ لوگ جو بدو کہلاتے تھے، وہ لوگ اس ایران و کسرا جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتیں تھی، وہ ان کے نام سے کانپا کرتی تھی۔ اس کا آپ تجزیہ کیجئے، وہ کیوں کانپا کرتی تھی؟ اس کا تجزیہ میری نقطہ نظر سے صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ مخلص تھے، وہ لوگ خدا کے حکم پر چلنے والے تھے، ان میں لوگوں میں بھائی چارہ تھا، ان میں یگانگت تھی۔ اگر یگانگت اور قومی یکجہتی کی بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ 7 لوگ پانی کا پیالہ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہوئے جانے نثار کر گئے اور کسی نے پیالہ نہ پیا۔ اس کو نام قربانی ہے، اس کا نام جذبہ ہے۔ اگر آپ لوگ قربانی اور اشار کا نام جذبہ نہیں نکالیں گے آگے، اس کا حکمران کیسا تھا، اس کے عوام کیسے تھے؟ اس میں کوئی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا، معاشرہ ایسا قائم ہوا تھا، سب لوگ دینے والے تھے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں وہ سارے سہگل تھے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے داؤد تھے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سارے زرداری تھے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سارے نواز شریف تھے؟ یقیناً نہیں، دعوے سے کہتا ہوں ان میں ہمارے جیسے لوگ تھے، لیکن ان کا ذہن، ان کا تصور اللہ کے بندے ہونے کا تھا، اللہ کا خلیفے ہونے کا تھا، دنیا پر حکمرانی کرنے کا تھا، محکوم ہونے کا نہیں تھا۔ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، مسلمان صرف اللہ کا خلیفہ ہے، مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے، مسلمان کا حق ہی نہیں فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے آگے نکلے۔ آج تم محروم ہو، آج تم دنیا کی رہنمائی تلاش کرتے ہو، آج تم دنیا کی قیادت تلاش کرتے ہو۔ اٹھو مظفر گڑھ کے لوگوں، اٹھو پاکستان کے لوگوں، اٹھو، ورنہ خدا تم سے پوچھے گا، رسول تم سے پوچھے گا، تمہاری آنے والی نسلیں تم سے پوچھیں گے، تمہارے جانے والے بزرگوں کی روحیں تم سے پوچھیں گی تم نے پاکستان کا کیا اشر کیا۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان نسلوں کو ہم آگے بڑھائیں،
इन नस्लों को बताएं कि तुम दुनिया के हुक्मरान हो, तुम दुनिया के कायदीन हो, तुमने दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, ना कि हम भीख मांगे। हजरात, मैं उस तरफ जाता हूं कि वो कौन सी सल्तनत थी? वो सल्तनत थी जिसका हुक्मरान हजरत अबू बकर सिद्दीक था, जिसका हुक्मरान हजरत उमर था, जिसका हुक्मरान हजरत उस्मान था, हजरत अली थे। उमर जिसके नाम से लोग कांपते थे, उनकी जिंदगी, तर्ज जिंदगी को देखिए, उनकी तर्ज जिंदगी को देखिए कि उसका एक बद्दू उठकर सवाल करता है, ऐ उमर, ऐ अजीम उमर, बता ये जो तुमने कमीज पहनी हुई है, ये कमीज पर 10 गज कपड़ा लगा हुआ है, जबकि हमें 5-5 गज कपड़ा मिले, बता तुमने ऐसा क्यों किया? इसका नाम था जमहूरियत, इसका नाम था बर्दाश्त। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मेरा बेटा बताएगा। और वो हुक्मरान जो कहता है दजला के किनारे पे अगर कोई जानवर भी भूखा मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो हुक्मरान जिसको बाहर के मुल्क का एम्बेसडर तलाश करते हुए आता है और पूछता है कि मैंने उमर को मिलना है, तो एक आदमी इशारा करता है कि वो खजूर के नीचे जो लेटा हुआ है ये उमर है। और वो हैरान रह गया, ये मुल्क, इतनी बड़ी ममलकत का बादशाह, इतनी बड़ी ममलकत का राजधान, और ये नीचे जो लेटा हुआ है। और उससे वो जाकर उठता है और जब उसका चेहरा देखता है तो कांपने लग पड़ता है, कहता है तुम उमर हो, मैं उमर हूं। ये थी उनकी तर्ज जिंदगी, ये नहीं थी उनकी तर्ज जिंदगी। हजरात, हुक्मरानों का काम है मुल्क का बॉर्डर की हिफाजत करना, हुक्मरानों का काम है लोगों की जान माल की हिफाजत करना, हुक्मरानों का काम है लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना, हुक्मरानों का काम है महंगाई पर कंट्रोल करना, हुक्मरानों का काम है बिजली और गैस सप्लाई करना, हुक्मरानों का काम है बेरोजगारी को खत्म करना, हुक्मरानों का काम है कि कौम को एक बनाना। और वो उन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था। आज आप देखिए, मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था सवाए जज्बे के, सवाए यकजहती के, सवाए मुसलमानियत के, सवाए खुदा की हुक्मरानी के, और कुछ नहीं था उनके पास, और दुनिया उनसे कांपती थी। आज हम अरबों की तादाद में हैं, आज हम अरबों की तादाद में हैं, पूरी दुनिया से दौलत, बेहतर दौलत हमारे पास है, पूरी दुनिया से बेहतर इंटेलिजेंसिया हमारे पास है, जहानत हमारे पास है, लेकिन आज हम मुहताज हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर मुहताज में कि हम मुसलमानियत नहीं, कौमी यकजहती नहीं, हमें वो जज्बा नहीं जो उनके यहाँ जज्बा होता था। आज बताइए, जरदारी साहब से मैं पूछता हूँ, मियां नवाज शरीफ से मैं पूछता हूँ, सैकड़ों दाऊदों से मैं पूछता हूँ, जागीरदारों से पूछता हूँ, बताओ ये तुम्हें किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। और लेकिन अब पाकिस्तान तुमसे डिमांड करता है कि तुम सब मिलके, आपसे भी डिमांड करता है, मुझसे भी डिमांड करता है, तुम सब मिलकर बॉर्डर की हिफाजत करो। आज बॉर्डर बर्बाद हो चुका है, मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं, उस तफसील आपकी जबान से मैं सुनना चाहता हूं। आज डरू हमले ने हमारा निजाम तबाह कर दिया है, आज खुदकुश हमलों ने हमें सत्यानाश कर दिया है, आज महंगाई हमें किसी पासे की छोड़ा नहीं है, आज बिजली गैस के नाम से रोज रेट बढ़ते हैं, लेकिन कहां से होती तो नजर नहीं आती, बेरोजगारी की इंतहा है। मैं इस दरखास्त पे कहूंगा कि आओ हम सब मिलकर, आओ मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माओ, हुकूमत कुछ नहीं करेगी, आओ हम मिलकर इन मसाइल को हल करें, बस मेरी यही दरखास्त। मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब की खूबसूरत बातों को आगे बढ़ाते हुए हम दावत देंगे बाबा जमहूरियत नवाबज़दा नसरुल्लाह खान के सियासी जानशीन साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना नवाबज़दा मंसूर अहमद खान साहब सरबराह PDP को कि वो कौमी यकजहती के हवाले से अपनी कीमती आरज़ से हमें आगाह करें। पहले तो मैं रॉयल चैनल का शुक्रगुजार हूँ, कि उन्होंने आज के दिन मुजफ्फरगढ़ में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है,
इसे बर वक्त इस मौजू को सामने रख के इस तकरीब का इनेकाद किया और इसमें तमाम दोस्तों को, तमाम मकतब फ़िक्र को दावत दी ताकि वो आएँ और अपना माफ़ी ज़मीर अपने मुल्क की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए यहाँ पेश करें। मैं रॉयल चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नहायत ही अच्छी और ख़ूबसूरत काविश है। थोड़ा सा कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ा सा पस मंज़र में मैं अर्ज़ करूँगा कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि रॉयल चैनल जो है वो यहाँ कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करे। उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे मुल्की हालात हैं, वो हालात जिससे हमारी कौम शर्मिंदगी, नदामत, हजीमत और इस तरह भी कैफियत का शिकार है। तमाम कौम सकते के आलम में है। मालूम नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए जो कि हमारी परेशानियों में और हमारी शर्मिंदगी में इजाफा करे। तो मैं थोड़ा सा उसका पस मंज़र आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब साबका दौर में वॉर ऑन टेरर पर जिस वक्त साबका एक फ़ौजी डिक्टेटर ने अमेरिका की बात मानते हुए उसमें फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने का फ़ैसला किया, तो उसके फ़ौरन बाद जो मामलात हुए जिन्हें देखा नहीं गया, जिन्हें यूँ समझिए कि ओवरलुक किया गया, वो मैं पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं दोबारा उसे रिपीट कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जबल सिराज एक जगह है जहाँ 5 मुल्कों के वसीउल बुनियाद इंटेलिजेंस नेटवर्क का क़याम हुआ। ये 5 मुल्क जो हैं, इसमें अमेरिका की CIA, इसमें बरतानिया की MI, इसमें इसराइल की मोसाद, इसमें जर्मनी की BMD, इसमें हिंदुस्तान की रॉ। तो ये 5 इंटेलिजेंस, वसीउल बुनियाद इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, इसका क़याम मार्ज़ वजूद में आया जबल सराज पर। और इससे आगे 6 ज़ैली चौकियाँ कायम की गईं जो सरोबी एक जगह अफ़गानिस्तान की है, सरोबी से लेकर फैज़ाबाद तक 6 ज़ैली चौकियाँ कायम की गई। तो इसमें यानी मामलात तो उनके बहुत लंबे थे, मशरक़ वुस्ता को भी, चाइना को भी, ईरान को भी, इंडिया और पाकिस्तान को भी, और अफ़गानिस्तान को ग्रैब करने के लिए ये तमाम मामलात जो हैं ये ज़ैली चौकियों के रखे गए। लेकिन 2 चौकियाँ हमें रिलेट करती हैं। एक सरोबी की जो ज़ैली चौकी, उस पर आज भी कंट्रोल एंड कमांड जो है वो हाजिर सर्विस इंडियन जनरल की है, और उसका काम हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शोरश को हवा देना है, उसमें दहशतगर्दी को बढ़ाना है और यहाँ अमन व अमान का मसला पैदा करना है। और उनका टारगेट जो है खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीरिस्तान के अलावा ख़ास तौर पर फाटा और खुरम एजेंसी। तो यहाँ के मामलात जो हैं कुछ इस तरह चले कि 7,000 अफ़गान नेशनल फोर्स के गुरीले जो हैं, जो बाद में 2007 में जो पकड़े गए और उन्होंने इंकशाफ किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो हिंदुस्तानी कैंप में, रॉ के कैंप में हुई, जहाँ हमें तखरीबकारी और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी गई, जहाँ हमें असला और पैसा दिया गया, और वहीं से हमें इंडक्ट किया गया खैबर पख्तूनख्वा में कि यहाँ मामलात जो हैं वो तहबाला करें। तो हमने उसकी पेशबंदी नहीं की। हमें चाहिए था, उस वक्त की हुकूमत को चाहिए था, उस वक्त की इंटेलिजेंस को चाहिए था कि बरवक्त तौर पर इसके बारे में कोई पेशबंदी, कोई ऐसी पेशबंदी कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की पोजीशन, दहशतगर्दी को हवा देने की पोजीशन जो है वो ज़्यादा ना हो पाए, और हम अपने मुखालिफ की ये जो नेगेटिव, एक मनफी उसकी सोच है, उसका कला कमा कर सके। तो जनाब, दूसरी चौकी जो है वो कंधार के अंदर कायम की गई, जिसका कंट्रोल एंड कमांड जो है वो अमेरिकन उन्हें दिया गया, और ये चौकी रिलेट करती है आपके बलूचिस्तान को। तो बलूचिस्तान के अंदर मामलात को ख़राब किया गया। 27 अजला में से 16 अजला में वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस कराए गए। उसमें हिंदुस्तान के काफिर भी मौजूद थे,
रॉ अब भी मौजूद है। उस ज़माने में उस वक्त के वज़ीर आला जाम यूसुफ पर 2 हमले हुए, उन्हें मार देने की कोशिश की गई। उन्होंने वहाँ से कराची तशरीफ़ लाए और वहाँ कसर नाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर रॉ बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है, इसे रोकने के लिए हुकूमत को कोई बंदोबस्त करना होगा। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उस वक्त के गवर्नर पर एक अटेम्प्ट हुआ और ये तकलीफ गवारा नहीं की गई कि ये अटेम्प्ट किसकी तरफ से हो रहा है। और फिर आप देखें कि जिस वक्त मौजूदा दौर में सवात के अंदर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो हमारी पाकिस्तान आर्मी को सख्त मुज़ाहमत का अगर सामना करना पड़ा तो यही वो लोग थे जो मुज़ाहमत कर रहे थे, यही वो लोग थे जिन्होंने वहाँ के मामलात को ख़राब किया। और अमेरिका ये चाहता था कि हमारी फ़ौज जो है वो सवात के अंदर नाकाम हो जाए, और जिस वक्त मेंटली कह लें, अखलाकी तौर पर कह लें और जिस्मानी तौर पर जब वो थक जाएगी तो वो एक आसान और तरन वाला बन जाएगी। तो ये उनके ख्यालात थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से हमारी पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ बड़ी खूब कामयाबियाँ हासिल की और सवात के अंदर वो तमाम मामलात को ख़त्म किया जो तखरीबकार और दहशत गर्दों के वसी नेटवर्क की वजह से वहाँ अमन व अमान तौबाला था। तो जनाब इसी तरह के वाक़ियात जो हैं आप देखें, कराची के अंदर नश्तर पार्क में एक बम धमाका हुआ जिसमें कसीर तादाद में वहाँ उलमाए कराम भी और वहाँ के लोग भी शहीद हुए। ये धमाका जो है ये आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँ, ये C4 एक्सप्लोसिव्स के ज़रिए किया गया। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में ये वजाहत कर दूँ कि C4 एक्सप्लोसिव्स ये एक ऐसे एक्सप्लोसिव्स है जो दुनिया के अंदर सिर्फ 5 ममालिक के पास है, छठे के पास आज तक नहीं आए। इसलिए कि ये बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि कोई फर्द और कोई ज़ाती तंजीम जो है इसे ख़रीद नहीं कर सकती। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि ये भारी मुआवजा अदा करके ये एक्सप्लोसिव्स अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को वो फराम करती है। तो जनाब C4 एक्सप्लोसिव्स पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, इसराइल के पास है, रूस के पास है, हिंदुस्तान के पास है। इन 5 ममालिक के अलावा किसी के पास C4 एक्सप्लोसिव नहीं है। तो उस वक्त जिस वक्त नश्तर पार्क के अंदर ये धमाका किया गया और ये तय हो गया कि ये C4 एक्सप्लोसिव का धमाका है, तो किसी को ये अखलाकी जुर्रत नहीं हुई और किसी ने ये सोचने समझने की ज़हमत गवारा नहीं की कि C4 एक्सप्लोसिव्स के हवाले से हम उन मुल्कों से रब्ता कायम करें जिनके ताने बाने वहाँ तक पहुँचते हैं, जिनके लोगों को जो बहुत ज़्यादा मशकूक है। कुछ लोग बलूचिस्तान के अंदर पकड़े गए, कुछ लोग कराची के अंदर पकड़े गए, कुछ खैबर पख्तूनख्वा और कुछ पंजाब में पकड़े गए, और उन्होंने ये शवाहिद पेश किए और उन्होंने ये बताया कि ये तमाम काम जो है ये यही इंटेलिजेंस नेटवर्क कर रहे हैं, यही ममालिक कर रहे हैं। आप देखें कि मुंबई बम हमला जो है उसमें कितना सख्त एक्शन लिया इंडिया ने और कितना उन्होंने आपको दबाने की कोशिश की। आपके मुल्क पर वो हमला करना चाह रहे थे, लेकिन आपने ये तमाम शवाहिद आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। तो जिस वक्त आप गफलत के मुर्तकिब हुए, जिस वक्त आपका दुश्मन आप पर हावी हुआ, और फिर आप देखें कि साबका दौर में 80% एयर स्ट्रिप्स जो है वो आपने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को हवाले कर दी। जैकबाबाद के शौबाज एयर बेस से लेकर कोहाट तक आप देखें कि ये 80% एयर स्ट्रिप्स बनती है पूरे मुल्क की, वो आपने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हवाले की, और आपने सर्वेलेंस की ज़हमत नहीं गवारा की। यानी आपने ये सोचा नहीं कि ये यहाँ आए हैं, मुस्तकिल इन्होंने कॉलोनियाँ बना ली हैं, तो इनके बारे में हम ये आगाही रखें कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ, इनके टारगेट्स क्या हैं, इनके अहदाफ क्या हैं। तो आप उससे गाफिल हो गए। जिस वक्त मौजूदा दौर में अमेरिकन एम्बेसी को 22 एकड़ की तोसी की गई इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ 3,500 मरीन्स के नाम पर वहाँ बंगले और क्वार्टर्स बनाए गए, तो दारुल खिलाफे के अंदर आपने शरपसंदों को बिठा दिया। तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि कभी भी दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है
کہ کسی بھی ایمبیسی کی توسیع کے لیے 22 ایکڑ زمین دی جائے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ جرم مرتکب یہ ہماری حکومت یہ ہوئی. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تو یہاں موجود تھے. اب یہ امریکہ اور اس کے اتحادی کون ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں. اس میں اسرائیل کے یہودی بھی موجود ہیں, اس میں زائنسٹ تنظیم کے یہودی بھی موجود ہیں, اس میں ہندوستان کے کافر بھی موجود ہیں. آپ نے ان تمام کو پاکستان کے اندر رہنے کا جواز فراہم کیا, انہیں اجازت دی. آپ کا آئین, آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہودی پاکستان کے اندر اس کا داخلہ ممنوع ہے, آپ پاسپورٹ نہیں ایشو کرتے. لیکن یہاں آپ سے یہ غفلت ہوئی, آپ نے اسے یہاں رہنے کا موقع فراہم کیا. تو پھر اس کے بعد بلیک واٹر یہاں 11 مختلف ناموں سے کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر. بلیک واٹر کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ بلیک واٹر کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں, آ چکے ہیں. آپ انہیں ویزے فراہم نہیں کر رہے, آپ انہیں ویزے نہیں دے رہے, اس کے باوجود وہ پاکستان کے اندر انٹر کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طیارے امریکہ سے آتے ہیں اس کی کلیئرنس یوں ہے کہ اس کی انٹری درج نہیں ہوتی کہ کتنے لوگ آئے, کون کون لوگ تھے, کہاں کہاں سے آئے. اور پھر جس وقت وہ یہاں سے جاتے ہیں آپ کو تعداد کا علم نہیں کہ کتنے جا رہے ہیں, تو ایگزٹ میں بھی ان کا نام درج نہیں ہوتا. تو وہ بلیک واٹر بھی یہاں موجود ہے. نیٹو فورسز جو ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کابل کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ یہاں اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہے, سیحالہ کے اندر کہوٹا کے قریب وہ موجود ہے. تو جناب یہ دیکھیے کہ یہ بدقسمتیاں جب ہوں اور آپ اس تمام سیکیورٹی کے حساب سے آپ غافل ہو, تو پھر آپ کے ساتھ آئے دن اس قسم کے واقعات, یہ تو ایک روٹین میٹر ہے. اس میں تو کوئی بات جو ہے ایسی انہونی نہیں ہے. یہ 2 مئی کا واقعہ جو ہو گیا ہے ایبٹ آباد کا, یا یہ PNS کا واقعہ جو پرسوں ہوا ہے, تو یہ واقعات جو ایکسپوز کر رہے ہیں آپ کو, پوری قوم کو, آپ کی عسکری قیادت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے غافل ہیں. تو جناب یہ مختصر سی کچھ حقیقتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اب میں کچھ گزارشات اس حوالے سے کہ یہ حقائق, یہ تلخ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے, اب ان کا حل کیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, قومی یکجہتی کانفرنس کا تقاضا کیا ہے, کیا چاہتی ہے کہ ملک اور قوم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تمام ان واقعات کا سدباب ہو سکے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آج اس وقت یہ ہائی ٹائم ہے کہ جس وقت ہمارے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, ہماری سیاسی قیادت کو اور عسکری قیادت کو جوائنٹلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ معاہدے جو ہم نے خفیہ طور پر امریکہ کے ساتھ کیے, وہ ان رائٹنگ معاہدے تھے یا وربل معاہدے تھے, زبانی معاہدے تھے, جو گزشتہ دور میں ہوئے یا جن کی اس دور میں توثیق کرائی گئی, جنہیں اس موجودہ حکومت نے انہیں اجازت دیا, اس میں ڈرون حملے بھی ہیں, اس میں ان کے رہنے کا جواز بھی ہے, اس میں یہاں جتنے بھی لاہور کے اندر, پشاور کے اندر, کراچی کے اندر کالے شیشوں کے ساتھ گاڑیاں مسلح لوگوں کی پکڑی گئی اور پھر ایک ٹیلی فون پر ان ساروں کو چھوڑ دیا گیا بغیر تحقیق کیے. تو جناب یہ ٹائم ہے کہ جس وقت قوم کے سامنے بالکل واضح طور پر اور بالکل سچے طور پر یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا معاہدے کیے تھے, وہ قوم کے سامنے لائے, اور یہ بتائیں کہ جناب ان معاہدوں کی وجہ سے ہمیں نقصان کیا ہوا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو پوری قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ بات پاکستان کے لیے نہایت شرمندگی کا باعث ہے کہ جس روز 2 مئی کا واقعہ ہوا اسی روز ہمارے وزیر اعظم جو ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں وہ فرانس کے 4 روزہ دورے پر چلے گئے اور صحافیوں کو انہوں نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فرمایا کہ میں پاکستان کا دفاع فرانس جا کے کروں گا. تو اتنے بڑے واقعے پر جہاں پوری دنیا میں ہم ننگے ہو گئے, جہاں بیچ بازار اور چوراہے کے ہمیں ننگا کر دیا گیا اور ہمارے پر ہی امریکہ نے الزام لگانا شروع کر دیا, تو جناب یہ ضرورت نہیں سمجھی گئی, اسے سنجیدگی کے ساتھ یہاں اس معاملے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اور پھر دیکھیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا موقف مختلف تھا, صدر مملکت کا موقف مختلف تھا, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا موقف وہ مختلف تھا, ایئر مارشل ہمارے جو ہیں ایئر چیف ان کا
मुख्तलिफ था, मौक़िफ़ और उसके साथ हमारे तर्जुमान जो खारजा के हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था, तो ये किसी मामले पर मुत्तफ़िक भी नहीं थे। और फिर ज़रूरत भी इन्हें पेश नहीं आई। 4 रोज़ा दौरे से होकर वज़ीर आज़म साहब आए तो सदर मुमलिकत 7 रोज़ा दौरे पर कुवैत और उसके बाद रूस चले गए, तो संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। और फिर अब तो ये कहा जा रहा है कि 2 मई के वाक़यात के बाद जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने चीन का रुख किया तो अमेरिका और भी नाराज़ हो गया। और फिर ये जो PNS का वाक़या हुआ है, ये अमेरिका की उस मनफी सोच का नतीजा है कि जिसमें ये वाक़या कराया गया ताकि आपके एटमी असासे जो हैं वो अपने कब्ज़े में लिए जाएं, आपका कहूटा प्लांट जो है वो अपने कब्ज़े में लिए जाएं, आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी सारी को कोड लगा के अपने कब्ज़े में लिया जाए। तो जनाब इसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तियारी क्या रहती है, इसमें हमारी सालमियत जो है वो सवालिया निशान है। तो आज की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस इस बात की मुतकाज़ी है कि तमाम ऐसे मुआहदे जो खुफिया मुआहदे किए गए थे कौम के सामने लाई जाए, और फिर यहाँ थिंक टैंक्स को, यहाँ तमाम सियासी लोगों को, जितनी मुक़्तदर सियासी क़ुव्वतें हैं, मजहबी क़ुव्वतें हैं, यहाँ अस्करी क़यादत है, उन्हें बिठाया जाए, सर जोड़ के इसके बारे में इसका हल सोचा जाए। मैं जानता हूँ कि इस दलदल से फ़ौरन निकलना जो है ये एकदम मुमकिन नहीं होगा कि आप उछल के इस दलदल से निकल जाए, इस तरह नहीं है, लेकिन आपको एक पॉलिसी बनाना होगी, वो पॉलिसी जो मुल्की बका के लिए अहम हो, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए अहम हो, जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ आपको लेके जाए। इसके लिए एक जामे पॉलिसी बनाएं और उसी समत में आप चलेंगे तो पाकिस्तान आपका महफूज होगा। जितनी देर आप अमेरिका के चुंगल से नहीं निकलेंगे, आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ आप जंग का ऐलान करें, लेकिन बड़ी दानाई के साथ, बड़ी बसीरत के साथ और बड़ी सोचो विचार के बाद आप जिस वक्त अपनी जनरल कौमी पॉलिसी को बनाएंगे, आपकी खारजा पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी का एक हदूद व हरबा, एक पैरामीटर्स वहाँ तय होंगे, और उसके मुताबिक जिस वक्त आप चलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान आपका ज़्यादा महफूज होगा। तो यही आज की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का मैं आखिर में रॉयल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रॉयल न्यूज़ चैनल ख़ास तौर पर मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज बहुत ही नाजुक और हसास मसले की तरफ अवाम की और इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। तर्ज़ हयात हमारे पास मुकम्मल है, इस्लाम। टकराव तब पैदा होता है जब हम उसमें इनफरादी तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। कैसे? भाई ज़ाब्ता इखलाक, ज़ाब्ता हयात तो आपको मिल चुका है, अब सिर्फ एक शख्स उस मुकम्मल निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करता है। हम उस मसले को ऐसे भी उठा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अफराद का गिरोह बन चुका है। मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हो चुका है। किस वजह से? फिर वही बात, नज़रिया हयात तो है, अफराद के मनपसंद फैसले हमें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हैं। इसमें तब्दीली इज्तिमाई आनी चाहिए। सब पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर सियासतदान, अहले इक़्तिदार, इन तमाम मसाइल की तरफ एक इज्तिमाई सोच रखते हुए तवज्जो करें और एक ऐसा लाहे अमल, एक ऐसा खाका तैयार करें कि हमें अग़यार का मोहताज ना होना पड़े। इस सिलसिले में जितने भी प्रोग्राम्स दूसरे चैनल्स पे हुए हैं या होंगे, थिंक टैंक्स भी अपनी आरा में अपनी आरा का ख्याल इजहार करेंगे
मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करूँगा कि तर्ज हयात वही रहने दें, सिर्फ माशरती वसाइल का गैर मुनसिफाना तकसीम को रोक दें। मिल्लत इस्लामिया जिस सानहे, मिल्लत पाकिस्तान जिस कर्ब से इस वक्त गुज़र रही है, उसका अंदाज़ा हम खुद बल्कि हम सब कर सकते हैं। हमारे हुक्मरानों ने तर्ज इक़्तिदार में तब्दीली नहीं लाई, हाँ अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां ज़रूर लाई हैं। जब तक एक सोच, एक नज़रिया हमारे जहन में था, रहेगा, मिल्लत इस्लामिया 3/4 दुनिया पर हुक्मरानी भी करती रही है। आज सिर्फ चंद टकों के एवज़ हमने अपने मिल्लत इस्लामिया को भी बल्कि इस्लाम को भी बेच दिया है। क्यों? सिर्फ इस वास्ते कि अब उस तर्ज हयात में अफराद मनपसंद फैसले कर रहे हैं, अक़वाम या कौम का कहीं भी जिक्र नहीं है। नारे तो लग रहे हैं, गरीब अवाम, मजदूर अवाम। हो क्या रहा है? तब्दीली कौन लाएगा? किस मकसद की खातिर आप ऐवान इक़्तिदार में जा बैठते हैं? कौन अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएगा? कौन उस पर ऐसे मस्बत तरीके से असरअंदाज होंगे कि चंद माह, चंद सालों के अंदर मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उस अरूज पे होगा कि दुनिया उसकी मिसाल देगी। मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश करूं कि 1965 में जनूबी कोरिया ने सदर पाकिस्तान अयूब खान से 5 साल हम एक तरक्की का मुआहदा बनाते हैं, जो उन्होंने कीमत देकर ख़रीदा, और उसी 5 साल तरक्की के मुआहदे पर उन्होंने मुखलिसाना और इंतहाई काबिल एतमाद तरीके से अमल दरामद किया कि आज हमारे लिए ये बात बायस शर्म है कि हम उसी जनूबी कोरिया से इमदाद ले रहे हैं। हमारे पास काबिल एतमाद, काबिल अज़हान की कमी नहीं है। हमारे पास सिर्फ कमी है तो अपनी सोच में तब्दीली की, वो हम लाना नहीं चाहते। मिल्लत इस्लामिया का नारा तो लगा देते हैं, मिल्लत पाकिस्तान का नारा तो लगा देते हैं, लेकिन फैसले अफराद की मर्ज़ी के करते हैं। मैं आप तमाम सामीन, ख़ास तौर पर मियां अब्दुल गफूर वट्टू साहब, जिन्होंने इस इंतहाई अहम और नाजुक मसले पर तवज्जो मबजूल कराई और इंतहाई काबिश से तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद करा रहे हैं, वक्त की कमी की खातिर मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ आप खुदारा एक सोच अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इज़्ज़त माब मियां अब्दुल गफूर वट्टू साहब, हम अहलियान मुज़फ़्फ़रगढ़ प्रेस, मुज़फ़्फ़रगढ़ के सियासी समाजी कारकुनान और सिविल नेटवर्क की तमाम तंजीमें आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुज़फ़्फ़रगढ़ में कौमी यकजहती के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़िद किया है। और मैं ये समझता हूँ जनाब वट्टू साहब कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, और इसकी इस वक्त जो पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, इस बात की अशद ज़रूरत है कि मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए अमली काम किया जाए। जनाब वट्टू साहब और मेरे दूसरे हाज़रीन भाइयों, कौमी यकजहती कहने के तो सब कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जितना मौसर काम मीडिया कर सकता है वो कोई शायद दूसरा नहीं कर सकता।
पाकिस्तान में क्योंकि सियासी जमातें मैं निहायत नवाबजादा साहब से निहायत और बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं से निहायत अदब के साथ ये अपनी बात करना चाहता हूँ, हमें सबका एहतराम है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें उस हवाले से मुनज़्ज़म नहीं है जो कि जिस अंदाज से सियासी जमातों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, और हमारी सियासी जमातें वो काम नहीं कर रही जो कि इस वक्त कौम और मुल्क की ज़रूरत है। और ये हमें खुशी की बात है कि ये काम मीडिया ने उठाया है। और लेकिन हमें इस बात का भी एतराफ़ है कि हमारे मीडिया में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आज़ादी इजहार का या मीडिया की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आजकल जनाब भट्टू साहब, जब हम अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर ये मौजूदा हालात हाज़रा के बारे में तबसरे सुनते हैं तो हमें दिली दुख होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता कि हमारे बाज़ चैनल्स पे इस अंदाज में, इस नाक़दाना अंदाज में हमारी पाक फ़ौज, हमारी ISI, हमारे मुल्क के इदारों और पूरे सिस्टम के बारे में ऐसे तलख अंदाज में बातें की जा रही होती हैं जो कि ना इंडिया चैनल पे आ रही होती हैं, ना कोई वेस्टर्न या अमेरिका में। यानी जो एजेंडा आज के अखबारात देखें, कल के अखबारात देखें, मैं किसी सियासी जमात का भी नाम नहीं लेना चाहता, कि जो कुछ अमेरिका वाले कह रहे हैं, जो कुछ इंडिया वाले कह रहे हैं, वही सब कुछ हमारे इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सियासतदान इरशाद फरमा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे तमाम इदारों में खामियां हैं, मुल्क के तमाम इदारों में, इसी तरह की खामियां हमारे अस्करी इदारों में भी मौजूद हैं। खामियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन उसका ये हल नहीं है कि जिस तरीके से हम मीडिया में बैठकर और ख़ास तौर पर चैनल्स में बैठकर अपने इदारों की जग हसाई कर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में निहायत अदब के साथ मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप इस्लाह के काम करें, आप मसाइल और जो खामियां हैं उनकी निशानदही करें, लेकिन निशानदही के लिए अंदाज मुस्बत होना चाहिए। पाकिस्तान के कौमी मफाद को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जहाँ तक जनाब भट्टू साहब, आप मुख्तलिफ अजला में पहुँच कर कौमी यकजहती के लिए लोगों को पैगाम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा मिशन है। इसके लिए सियासी समाजी तंजीमों को भी रोल अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी ज़रूरत है कौमी यकजहती की, शायद इससे पहले ज़रूरत ना हो। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई हसास तरीन हालात से गुजर रहा है, और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जनूबी पंजाब में जो कुछ हालात हैं, हमें बदनाम किया जाता है कि यहाँ दहशत गर्दों का नेटवर्क है। जनूबी पंजाब के बारे में बहुत इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, लेकिन उसको कभी साबित नहीं किया जाता। जितने इक्का दुक्का वाक़यात हर जगह हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब को निशाना बनाया जाता है, ये मुनासिब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्द, खा वो लाहौर का हो, खा वो कराची का हो, खा वो पेशावर का हो, खा वो सराइकी खित्ते का हो, जो भी है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हमारा दोस्त नहीं है, हम उसके मुखालिफ हैं। हमने अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तमाम तर बहरानों का, तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला करना है। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब से कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। ये सिलसिला पाकिस्तान के और हमारी कौम के मफादात का अक्कास है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे जनाब AB मुजाहिद चेयरमैन एपटिक मुजफ्फरगढ़। इसके साथ ही मैं दावत दूंगा मलिक मजहर हुसैन पौड़ जिला प्रेस सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़, क्योंकि वो डाइस पर आकर अपनी कौमी यकजहती के हवाले से अपनी आगाह से हमें आरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल गफूर भट्टू साहब, चेयरमैन रॉयल न्यूज़ चैनल, इंतहाई काबिल एहतराम नवाबज़दा मंसूर अहमद खान साहब, जनाब AB मुजाहिद साहब, साजिद नईम कुरैशी साहब, मेरे तमाम प्रेस के दोस्तों और तमाम सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ज़ाहिर है जब हुकूमत होती है तो उंगलियां भी उठती हैं, इतराज़ात भी होते हैं, इल्ज़ामात भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो जिस तरह मीडिया के दूसरे नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ
सलूक कर रहे हैं। आज भी मुझे यही सलूक यहाँ देखने में आया कि सबसे बड़ी सियासी जमात के नुमाइंदों को बुला के सबसे पीछे बिठा दिया और एहसास नहीं किया कि 3-4 जमातें हैं और ज़ाहिर है उनको ही आपने अगर बुलाया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुनना है तो उनको इज़्ज़त भी देनी चाहिए थी। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी इस काविश को कि कौमी यकजहती के हवाले से आज आपने एक प्रोग्राम बनाया है, एक गैदरिंग की है जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मैं जनाब नवाबज़ादा मंसूर अहमद ख़ान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा हैं, इनका सियासत में वसी तजर्बा है, तो इन्होंने बैकग्राउंड बताया है कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। तो जो उन्होंने बताया है मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूँगा। वो शायद ये बताना भूल गए हैं कि पाकिस्तान में आज जो भी हालात हैं, जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, अमेरिका कर रहा है या कोई और पाकिस्तान का दुश्मन कर रहा है, तो उसमें सारा का सारा कसूर सियासतदानों का नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ना मुस्लिम लीग नून का है, ना मुस्लिम लीग काफ का है। ये कसूर बरमला कहने की बात है, ये कसूर है डिक्टेटरशिप का जो हम पे मुसल्लत होती रही, जो हमारे सियासी हकूक़ को जिन्होंने मजरूह किया, जिन्होंने जमहूरियत का गला घोंटा और जिन जिन लोगों ने अमरीत का साथ दिया, ये उनका कसूर है जो आज कौम भुगत रही है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करता हूँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को, जिसे हमारे मीडिया के दोस्त भी, हमारे सियासी दोस्त भी, हमारे मजहबी दोस्त भी आज तक उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान के बाद पाकिस्तान की क़यादत अगर कोई संभाल सकता है तो वो आसिफ अली जरदारी है। जैसे नवाबज़ादा मंसूर अहमद ख़ान साहब बता रहे थे कि सवात में क्या होने वाला था, हम सुन रहे थे कि मारगला की पहाड़ियों में तालिबान आ गए हैं और इस्लामाबाद का कंट्रोल उन्होंने संभालना है और चंद दिनों में ये पहुंच जाएंगे। आज मैं सलाम पेश करता हूँ उस मर्द हुर को जिसे जनाब मजीद निज़ामी ने कहा था कि वो मर्द हुर है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी सियासी बसीरत के साथ न सिर्फ सवात और शुमाली इलाका जात को वहाँ से खाली करा के लाखों ख़ानदानों को दूसरी जगह मुंतकिल करके कामयाब ऑपरेशन किया, वहाँ से दहशत गर्दों को भगाया, बल्कि वहाँ से मुंतकिल तमाम उन ख़ानदानों को अपने अपने घरों में आबाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज खुशहाली है। और फिर आसिफ अली जरदारी को मैं इसलिए भी सलाम पेश करता हूँ कि उसने कौमी मफाहमती पॉलिसी को अपनाया है, उसने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को दावत दी है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने अकेले हुकूमत करनी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि आज मुल्क में जो हालात हो चुके हैं वो किसी सियासी, किसी मजहबी जमात के अकेले बस में नहीं हैं। जब हम मिलेंगे, बिन हैसुल कौम इकट्ठे बैठेंगे, तब ये हालात ठीक होंगे। तो देख लें कि जब एक वक्त में हम मुस्लिम लीग काफ से नफरत कर रहे थे, तो आज मुस्लिम लीग काफ को हमने गले लगाया है, इसलिए कि मुल्क के हालात ये तकाजा करते हैं, ये कौम तकाजा करती है, ये पाकिस्तान अर्ज़ पाक ये तकाजा करता है कि हमें इख्तलाफात नहीं मुफाहमत से आगे चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुफाहमत की पॉलिसी से पंजाब की हुकूमत भी कायम है और इंशाअल्लाह ये 5 साल पूरे करेगी। किसी में अगर ये शक हो कि पंजाब में कुछ किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत भी, मरकज़ की हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी इंशाअल्लाह, और पंजाब की हुकूमत भी, तमाम सूबों की जमातें अपनी हुकूमतें अपने अपने टेन्योर को पूरा करेंगी और फिर सियासी अमल से फिर आगे चलेंगे। तो आज जिस तरह ये हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हों या PNS के हमले हों या जो भी दहशत गर्दी के हमले हैं, तो ये हमें विरासत में मिले हैं डिक्टेटरशिप से। फौजियों ने जो मुआहदे किए थे, जो डिक्टेटरों ने मुआहदे किए थे, ये उनकी वजह से हमें आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं, आज भुगतना पड़ रहा है। आज मुझे गिला है अपने मीडिया के नुमाइंदगान से, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, मैं प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ का मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ,
मैं भी एक अखबार रोज़नामे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे अफसोस होता है उस वक्त, जैसे मुजाहिद साहब कह रहे थे कि क्या कुछ नहीं कहा गया पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ। आज से नहीं, फ्राम द वेरी फर्स्ट डे, वहाँ से लेके आज तक जो कुछ कहा गया हमने उसको खंदा पेशानी से सुना, उसको बर्दाश्त किया, लेकिन हमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी, हमने अपने टारगेट नहीं छोड़े, हम आगे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम मायूस नहीं हैं। पूरी सियासी जमातें, पूरी मजहबी जमातें हमारे साथ होंगी। इंशाअल्लाह मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे और जो बेड़ा मेरे बुजुर्ग अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने उठाया है, ये हमारा काम था, सियासी जमातों का काम था जो इन्होंने उठाया है। आज मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ कि इस बुजुर्गी की हालत में ये हमारे पास आए हैं, हमारे नुमाइंदगान को यहाँ इकट्ठा किया है सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल पाकिस्तान की तरफ जाएं, अच्छी सोच लेकर जाएं, मुस्बत सोच लेकर जाएं। मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ और इनकी पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ जो ये कार खैर में अपना हिस्सा मिला रहे हैं। मैं आज जहाँ वो मीडिया के दोस्त जो एंकर पर्सन हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, अपने साथ बिठा के अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं, अगर आपने राय मुसल्लत करनी है तो फिर उनको बुलाते क्यों हैं? आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आप उनको भी बात करने दें और फिर जो भी बात होगी, अल्लाह ना करे मैं गिला कर रहा हूँ, एक बंद कमरे में गिला कर रहा हूँ और एक मीडिया के चेयरमैन के चैनल के चेयरमैन के सामने कर रहा हूँ और ये मेरी आवाज़ मुझे उम्मीद है कि ये ऑन एयर होगी, ये जाएगी सारे दोस्तों तक। मुझे गिला है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत पीपल्स पार्टी के कारकुन के नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी मुझे गिला है अपने मीडिया से, अपने मुल्क के मीडिया से। दुनिया को क्या बता रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? छोटा सा वाकया होता है, उसको इतना बड़ा वाकया बना के पेश करते हैं जैसे दुनिया के लोग ये समझें कि पाकिस्तान है ही दहशतगर्द मुल्क, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूटने वाला है, खुदा न खास्ता कल पाकिस्तान नहीं होगा। मुझे गिला है उन मीडिया के दोस्तों से और वो चैंपियन बनते हैं मीडिया के। मैं लफ्ज़ मुज़म्मत तो नहीं बयान कर सकता क्योंकि मीडिया के मेरे दोस्त भी काफ़ी बैठे हैं, लेकिन मैं उनको दस्ता गुजारिश करता हूँ इस मुल्क और कौम के लिए और इस मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अच्छी सोच, अच्छी गुफ्तगू और अच्छे ख्यालात रखें और कौम को हमने ये बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हम तबाही की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने मुल्क को मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हमें ये पैगाम देना होगा और हमारी तमाम सियासी जमातों को भी, हमारी तमाम मजहबी जमातों को भी, हमारे तमाम सहाफ़ी बरादरी को भी, हमारी अदलिया को भी ये ख्याल करना होगा कि ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, इसका मुस्तकबिल हमने संवारना है। न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क है, ना मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है, अपना मुल्क है, ना जमात इस्लामी का मुल्क है। ये मुल्क है तो हम सब का है, जिसमें कोई तफरीक नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमने मिल के इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जाना है। मैं एक मरतबा फिर अब्दुल गफूर भट्टू साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी।